Hello friends, this is DART Daily Current Affairs Revision Test, in which we discuss 5 of the most important MCQs from the best sources, that is PIB, The Hindu and Indian Express. This is an initiative by Questlink IAS, and today on 5th of August 2026, Wednesday, we'll be discussing today's 5 MCQs. Question number 1 is from Environment. With reference to wetlands in India, consider the following statements. Number 1, Ramsar sites are wetlands of international importance designated under Ramsar Convention, and India is a contracting party to the convention. Number 2, recently it has been directed that mining activities within a 10-kilometer radius of the wetland conservation reserves require prior approval from the Standing Committee of the National Board of Wildlife (NBWL) and or Ministry of the Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC). Which of the statements given above are correct? Option A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. Now, you can pause this video and attempt this question on your own. We'll move to the explanation and solution after 3 seconds. Before that, we'll try to tackle this question based on general understanding or any of the elimination method if it applies. So, looking at this question, this is a 2-statement type question. और ये wetlands के बारे में, this is regarding the wetlands in India. So first statement, Ramsar sites are wetlands of international importance designated under Ramsar Convention and India is contracting party. ये सही है. Similarly, the second statement, recently it has been directed that the mining activities within 10 kilometer radius. तो ये current affairs का part है. This is the statement which has been in current affairs. If you are following the current affairs, then you know. अगर आपने पढ़ा है आर्टिकल तो क्यों हुआ क्या है रिसेंटली कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 10 किलोमीटर रेडियस जो भी है वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व्स का, जैसे रामसर साइट्स हुए, उनका वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी करनी है डेवलपमेंटल या फिर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना होगा. किससे? या तो एनबीडब्ल्यूएल से, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और या नहीं तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MOEFCC से डायरेक्ट आपको अप्रूवल लेना होगा पहले. उस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं. ओके. लेकिन अगर दूसरा स्टेटमेंट अगर आप मान के चलो नहीं पढ़ा है या फिर आप नहीं भी जानते हो कि 10 किलोमीटर के रेडियस वाला, तो फिर भी आप 2 ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर देते हो 1 के आधार पे. और लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की, ये देखो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करना. ये नॉट करेक्ट पूछा है. ओके. सो नॉट करेक्ट पूछा है तो जो भी करेक्ट है वो नहीं होगा आंसर. ओके. दैट्स व्हाई द आंसर विल बिकम डी हियर, नीदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं, यानी नॉन इज नॉन करेक्ट, नॉट करेक्ट. अब आप देख लो, ये आंसर डी है. वेटलैंड्स आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड थ्रू इंटरनेशनल कमिटमेंट्स and domestic conservation measures. They play a crucial role in biodiversity conservation, flood moderation, and groundwater recharge. Ramsar sites are wetland designated under Ramsar Convention. Recently, it has been directed that mining within 10 kilometer radius of wetland conservation. तो यहाँ पे जनरली देखो, यहाँ एक्सप्लेनेशन में आपने नोटिस किया होगा कि हम जो पहला पॉइंट देते हैं वो कॉन्टेक्स्ट का देते हैं, जिसमें कि जो कि न्यूज़ में रहा है जो वही रहता है पहला लाइन कॉन्टेक्स्ट का. लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट आ गया MCQ में, इसलिए हमें ये पहला लाइन में कॉन्टेक्स्ट ना दिखे, ये थर्ड पॉइंट में हमने कॉन्टेक्स्ट दिया, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया और ये हमारा स्टेटमेंट भी हो गया. अब ये MCQ लिया कहाँ से गया? ये द हिंदू का आर्टिकल से लिया गया. ये द हिंदू का आर्टिकल है, ये रहा उसका हेडलाइन, आप जाके पढ़ सकते हो. अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा भी इन्वायरमेंट से ही है. विथ रेफरेंस टू द क्लाउडेड लेपर्ड नियोफेलिस नेबुलोसा, consider the following statements. It is found in the Himalayan foothills and the forested landscape of northeast India. Number 2, it is an arboreal wildcat with exceptional long canine teeth related to its body size. Number 3, it is listed as vulnerable in IUCN Red List and it included in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. Which of the statements given above is or are correct? So you can pause this video and attempt this question on your own.
we'll move to the solution and explanation after 3 seconds. But before that, we'll try to tackle this question based on our general understanding or any elimination method if it works. Okay. तो ये क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में, जिसका ये साइंटिफिक नेम है न्यूफेलिस नेबुलोसा, और ये हिमालयन फुटहिल्स और नॉर्थ ईस्ट के इंडिया में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट आप लोग मतलब कि ये गेस भी कर सकते हो। यू कैन गेस दिस स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हिमालयन फुटहिल्स में जनरली फॉरेस्टेड एरिया है। नॉर्थ ईस्ट तो है ही, नॉर्थ ईस्ट में तो फॉरेस्टेड एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ क्लाउडेड लिपर्ड यानी लिपर्ड का पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी, इसलिए नंबर 1 को आप सही मान सकते हो। इट इज़ एन आर्बोरियल वाइल्ड कैट स्पीसीज एक्सेप्शनली लॉन्ग कैनाइन टीथ रिलेटेड टू इट्स बॉडी साइज, तो ये भी सही है। इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल इन आईयूसीएन। ऐसे ये फैक्चुअल है, लेकिन ये सही है। आप अगर आपको नहीं भी पता है ये दोनों फैक्ट्स, और दूसरा तो भाई सही है, क्योंकि ये भी जर्नलिस्टिक टाइप का है, तो 1 और 2 तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि 1 और 2 सही है। तीसरा थोड़ा होता है कि कभी कभी वल्नरेबल की जगह वो कुछ और टर्म दे देगा, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड वल्नरेबल की जगह। ओके, तो और शेड्यूल में भी चेंज आ सकता है, लेकिन शेड्यूल 1 जनरली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए है। और अब तो शेड्यूल्स को कम भी कर दिया गया है, मतलब पहले 6 टाइप के शेड्यूल्स हुआ करते थे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए, अभी उनको घटा के 4 कर दिया। आप एक बार चेक कर लेना। तो फिर भी अगर आपको ये वाला में भी कंफ्यूजन है, अगर आप इसमें श्योर नहीं हो, तो 1 और 2 तो आप पता लगाकर 50-50 तक तो पहुंच ही जा रहे हो। ओके, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी है। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, आंसर डी। इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन प्लान, एक्शन प्लान सीएपी, टू स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन ऑफ वन ऑफ एशियाज मोस्ट इल्यूसिव वाइल्ड कैट। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इल्यूसिव वाइल्ड कैट है। दूसरा इल्यूसिव कैट है स्नो लेपर्ड। In India, clouded leopard is primarily distributed in the forest landscape of northeast India, with its range extending into eastern Himalayas and Himalayan foothills. The clouded leopard is highly arboreal species adapted to climbing trees. Arboreal मतलब वही climbing trees. Possesses proportionately the longest canine teeth along living wildcats, earning its nickname the modern day saber tooth cat. देखो saber tooth cat एक extinct हो गया species है, जिसके केनाइंस बहुत ज़्यादा लंबे होते थे। तो अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा लंबा केनाइन है, ये क्लाउडेड लेपर्ड का ही है, इसलिए इसको मॉडर्न डे सेबर टूथ भी कहते हैं। इस चीज़ को आप मतलब इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट। द स्पेसीज इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन ऑन आईयूसीएन लिस्ट। आईयूसीएन लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, शेड्यूल 1। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर डी आंसर सही है। और ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया, ये पीआईबी का आर्टिकल है ऑन द इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे। तो ये इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे भी है आज। आज ने 4 अगस्त को कल था। ओके, पीआईबी के आर्टिकल्स जनरली एक दिन पुराने लिए जाते हैं, क्योंकि ये शाम तक अपलोड होता रहता है। शाम तक बोले तो रात तक भी, 10 बजे रात तक भी अपलोड होता रहता है। तो एक दिन पहले का लेने पे उस दिन का सारा आर्टिकल आ जाता है। तो अगर आज बना रहे हैं कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल, तो हम लोग एक दिन पुराना लेते हैं पीआईबी का। दिस इज जनरल ट्रेंड और जनरल प्रैक्टिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पॉलिटी का है। ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 370 conferred a special constitutional status on erstwhile state of Jammu and Kashmir. Statement 2, it enabled the president to extend provisions of Constitution of India to Jammu and Kashmir through presidential order. Statement 3, it originally formed part of chapter on fundamental right in the Constitution. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Both statement 2 and statement 3 are correct, and both of them explain statement 1. Both statement 2 and statement 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Only one of the statement 2 and statement 3 is correct, and that explains statement 1. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. Now you can pause this video and attempt this question on your own. After that, we'll pause for 3 seconds and move to solution and explanation. Before that, we'll try to solve this question based on our general understanding or any elimination method if it works.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 370 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो पहला स्टेटमेंट ये मैंने बताया हुआ है कि असर्शन रीजनिंग टाइप का ये एक्सटेंशन होता है। ये क्वेश्चन, इसमें पहला स्टेटमेंट असर्शन होता है और ये सही ही होता है हमेशा। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ये सही है या गलत है, लेकिन इसको पढ़ लेना है ताकि बाकी के स्टेटमेंट से आप इसका रिलेशन पता लगा सको। कन्फर्ड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन हॉस्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। It enabled the president to extend provisions of Constitution of India to Jammu and Kashmir through presidential order। ये सही बात है। It originally formed part of chapter on the fundamental rights in the Constitution। ये गलत है। ये तो साफ गलत है, कोई भी बता देगा। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट थोड़ी था 370। आर्टिकल के नाम से ही है फंडामेंटल राइट्स तो। Both statement 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1। तो ये तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी आंसर इसका। Only one of the statement 2 and statement 3 is correct and explains statement 1। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। आंसर सी है, मेकिंग 7 years सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अभी हुआ क्या कि 7 साल हो चुके हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के। और आर्टिकल 370 empowered the president to apply provisions of constitution in Jammu and Kashmir through presidential orders formed the basis of special constitutional arrangement। Article 370 was placed under Article 21 temporary transition special provisions and not under fundamental rights। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ये रहा उसका हेडलाइन, आप जाकर पढ़ सकते हो। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। द मेडिसिन हाइड्रोथियाजाइड एंड वोरिकोनाजोल and tacrolimus are recently in the news after being classified by the International Agency for Research on Cancer (IARC) under Group 1 carcinogenic for humans। Which of the following correctly describes these medicines? They are widely used as therapeutic drugs for treatment of hypertension, serious fungal infection, and prevention of organ transplant rejection, respectively. They are live attenuated vaccines used under the Universal Immunization Program to prevent viral infection। They are broad-spectrum antibiotics recommended by the WHO for treatment of multi-drug resistant bacterial infection। They are monoclonal antibody-based biological primarily used for the treatment of autoimmune disorders। अब ये क्वेश्चन हाईली फैक्चुअल है। इसमें मैं आपको कोई भी मतलब किसी भी तरह का तुक्का या तिकड़म नहीं लग पाएगा। इसमें हम मतलब अगर पता है तभी पता है, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स काफ़ी क्लोज हैं और इसलिए इसको डायरेक्ट हम आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर ए है इसका। और एक्सप्लेनेशन ए, द WHO इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC रिसेंटली क्लासिफाइड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, ओरिकोनाजोल एंड टैक्रोलिमस as group 1 carcinogen, indicating sufficient evidence that they can cause cancer under certain circumstances। The classification is based on hazard identification and does not mean patients should discontinue their medicines without medical advice। Hydrochlorothiazide is an anti-hypertensive thiazide diuretic। Voriconazole is antifungal medicine and tacrolimus is an immunosuppressant used to prevent organ transplant rejection। तो ये सारी दवाइयाँ थी जिनको कार्सिनोजेनिक घोषित कर दिया है IARC ने, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे ड्रग्स का जो है कि टेस्टिंग या सही से नहीं हो पा रहा है। देखो ये WHO को बताना पड़ रहा है कि ये कार्सिनोजेन है, और जबकि पता होगा इंडस्ट्रीज़ को, फिर भी ये वाइडली यूज्ड होंगे इंडिया में। ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन है जो कि वर्ल्ड ओवर बैंड है, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। एंड दिस इज़ ट्रेजिक। ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और पीपल हम लोगों को भी ज़्यादा अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ये क्वेश्चन लिया गया द हिंदू के आर्टिकल से। ये रहा उसका हेडलाइन, आप जाकर पढ़ सकते हो। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा भी साइंस एंड टेक का ही है, विथ रेफरेंस टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये डिजीज से रिलेटेड है, मैं पढ़ देता हूँ। Number 1, African swine fever is caused by a virus that affects both domestic and wild pigs। Number 2, the disease of zoonotic and can be transmitted from pig to humans through infected pork। In the absence of effective treatment, disease control primarily relies on culling, rapid diagnosis,
and biosecurity measures. Mortality due to African swine fever may approach 100% in infected pigs. Which of the statements given above is or are correct? Option A 1, 3 and 4. Option B 1 and 2 only. Option C 2, 3 and 4. And option D 1, 2, 3, 4 all. Okay. अब इस क्वेश्चन को मैं हम लोग आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पर, लेकिन उससे पहले कोशिश करते हैं कि कोई ट्रिक्स लग पाए इसमें या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग पे ये बन पाता है या नहीं। ओके, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। इज कॉज बाय अ वायरस दैट अफेक्ट्स बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स। ऐसे ये जनरलिस्टिक ही है लेकिन फिर भी। और ये देखो, हाँ लॉजिक क्या है, स्वाइन स्वाइन जो है पिग्स से ही रिलेटेड है, तो उस हिसाब से ये वाला आंसर हम ये वाला ऑप्शन हम लोग सही निकाल सकते हैं कि एक सही है। और एक सही होने पे एक तो साथ साथ ही एलिमिनेट हो जा रहा है। अब आगे देखते हैं। डिजीज इज जूनोटिक एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमंस। ये वाला तो फैक्चुअल है, आपको पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं। द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिजीज कंट्रोल प्राइमरी रिलाइज ऑन कलिंग रैपिड डायग्नोसिस एंड बायोसिक्योरिटी मेजर्स। तो ये तो सही बात है भाई। देखो, अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होगा अच्छे से, एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट और डिजीज कंट्रोल प्राइमरी रिलाइज ऑन कलिंग रैपिड डायग्नोसिस एंड बायोसिक्योरिटी मेजर्स, मतलब कि बायोसिक्योरिटी मेजर्स और इफेक्टिव ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगा तब तक डिजीज कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, तो डिजीज कंट्रोल प्राइमरी रिलाइज, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। जेनरिक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है। मोर्टेलिटी ड्यू टू अफ्रीकन स्वाइन फीवर में अप्रोच 100% इन्फेक्टेड पिग्स, तो मे अप्रोच है ना, मे ये भी सही होने के चांसेस हैं, लेकिन 1 और 3 तो आपका पक्का से सही है। तो आप आराम से 50-50 पे तो पहुंच जा रहे हो। ओके, बस बस जनरल अंडरस्टैंडिंग पे, विदाउट एनी फैक्चुअल नॉलेज। तो उस हिसाब से अब आंसर तो इसका ए है। ऐसे 2 गलत है, ये जूनोटिक नहीं है, लेकिन फिर भी जूनोटिक का खतरा रहता है। ये पिग्स में है अभी तक तो। और उस आंसर हमारा ए है, मैंने बता दिया। लेकिन 50-50 पे जनरल स्टैंडिंग से अपन पहुंच गए थे। और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको पढ़ लो। अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज हाईली कंटेजियस ट्रांसबाउंडरी वायरल डिजीज ऑफ पिग्स that has caused several economic losses worldwide. The strength of India's livestock biosecurity (ICR) has developed the country's first indigenous live attenuated ASF vaccine. African swine fever is caused by the African swine virus (ASFV). Affects both domestic and wild pig. तो domestic को भी हो जाता है और wild को भी होता है। ठीक है, most devastating disease of swine because of its rapid spread and very high mortality. इतना हाई है कि 100% तक इसका पहुंच जाता है। ये देखो, कैन अप्रोच 100% मेकिंग इफेक्टिव डेडलीस्ट लाइफ स्टॉक डिजीज। तो मतलब जिसको भी हुआ उसका मरना तय है, इस टाइप की बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है, तो सोच लो। तो इसलिए इसका नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अभी तक कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। एंड इट इज़ नॉट अ जूनोटिक डिजीज, दिस इज अ बिग साई ऑफ रिलीफ। मतलब ये अभी तक तो रिलीफ की बात है कि अभी तक ह्यूमंस में जूनोटिक नहीं है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी इसको कंटेन करना की ज़रूरत होती है। अब ये देखो, ये पीआईबी का आर्टिकल से लिया गया है। पीआईबी का ये आर्टिकल है, इंडियन इंडिजिनस अफ्रीकन स्वाइन फीवर एएसएफ वैक्सीन। आप इसको जाके पढ़ सकते हो गूगल करके। और अब आखिरी में, ये हमारा आज का 5 क्वेश्चन हो गए। और आखिरी में आप देखो कि अगर आपको पीडीएफ और चाहिए एमसीक्यूज और सॉल्यूशंस के, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ये रहा हमारा नाम। और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।